speech, and it was excellent, sir. And you have triggered the tales of everybody, and we are really twisted to move forward. Thank you very much, Mr. Anil, the Managing Director of Education Today, Usha Mohanji, and all those dignitaries, delegates came from different parts of the country, the principals, the faculties, the support system of academic institutes, and various other personalities who have come to take participation in this Education Today 4th Annual Conference. I'm really excited to be among all of you. Though I do not come directly from the teaching faculty, but definitely I am a teacher. The difference in teaching in the classroom and the difference in the teaching. Somebody is continually speaking. I think either you close the door. Please close the door. There is a difference between teaching in the classroom and teaching in the open world. Myself and Mr. Harris both come from the open world. Though he has chosen a path which is Rajaniti, politics, but the goal is same, to serve the people of the country. I am a social worker. We represent only one concept, and that concept is, I will put it in a question. I would like you to answer me. Because always you have been questioning the student and you have been getting the answer. For a change today, let me ask you a question and you kindly answer me. Do you need India? Yes or no? I don't think people need India because the voice itself is so low. Do you really need India? Yes. Are you really serious you need India? Yes. My God, look at the Idlis effect. It has only one. Please have a breakfast which is sumptuous, so that in one voice we can just raise and tell the people, yes, if India needs us, we need India. Am I correct? Oh, look at the awful thing we are doing. If we don't need India, why do India needs us? How many of truly belonging to this country? How many of truly believe that we are Indians? We are so much happy to look at the Americans. We are so much happy to look at the Russians. We are so much happy to look at the French. And we are so much happy to look at an Italian. But we are never happy to look at an Indian. It reminds me of something which can just change our dimension of thinking. What is the purpose of education? Why we are trying to educate the society at large? Is it for self-betterment? Is it only for the personal glorification? Is it for only enjoying the concept called comforts of the life? Or is it something else? What is education? What is the very purpose of education? That I am a best teacher? I run a school where I have 8,000 students? If that is the concept, 70 years we lived in this country, but we were in this country for 6,000 years. The pathetic situation in which today the world stands, it's because India is not playing the vital role. Because we as academicians, the leaders, I mean all the principals, all the vice chancellors, have become administrators of Education Institute, where they look into the attendance register. They spend more time who is on leave and who is not on leave.
We are more worried about the infrastructure, whether the building is very big or not. We all have understood the academics means a beautiful atmosphere. That atmosphere can come from such a beautiful air-conditioned rooms. Which school Dr. Abdul Kalam has studied? Everyone whom I met in last 25 years, till he became the president of this country, and after becoming the president of the country, and then once he demitted his office of the president, everybody wanted to meet him, at least to shake hand with him once. Why? Why we should choose Abdul Kalam to shake our hands with him? Our hand is precious or his hand is precious? Or the air-conditioned studies which he has not got, or the air-conditioned study we got it and we are imparting it. Is it the type of leadership we are providing to the academics of 127 crores of Indians? Or are we looking for something different in this country? Long ago there lived a king. So what? We told this story year after year, year after year. But we have forgotten those stories which connects our heart, which corrects our mind, and which makes us work. Very well spoken by Mr. Harish. दिल नहीं लगा तो कुछ भी नहीं लगा. ना तो उससे, जिससे दिल लगा तो उससे रोमांस हो गया. अरे हमें तो दिल लग गया यार इंडिया से. क्यों हम इंडिया को प्यार नहीं कर सकते? क्यों हमें ये कहते हैं कि भैया I belong to West Bengal, I belong to Tamil Nadu, I belong to... Why we have not been able to educate our students that we are Indians first and we are Indian last? Where we went wrong? कौन सी लीडरशिप को हम डेवलप कर रहे हैं? वो लीडरशिप जो खड़े होके ये कह दे कि भैया ये देश में ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, या वो लोग हम बनाएं जो खड़े होके कहें कि भैया ये गलत है, ठीक है, लेकिन इसे सुधारा कैसे जाए? Talking about problem has come out from the last 17 years of the cultivation we did in our own classrooms. हमारे क्लास में 30 विद्यार्थी थे या हमारे क्लास में अमीर और गरीब विद्यार्थी थे. आज हम जब स्कूल में जाते हैं तो मुझे दुख होता है और कभी कभी आंख से आंसू भी आती है, क्योंकि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति अगर नहीं बनते तो कोई उनसे नहीं मिलता. अगर वो इस देश के साइंटिफिक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर को नहीं होते तो कोई शायद उनको चीफ गेस्ट बुलाता भी नहीं. मुझे पता है वो इंसान क्या है, क्योंकि मैंने उनसे 12 घंटे गुजारे हैं. इंसान की अहमियत उसके तालीम से आती है. Every person you want to discover what he is, you must first understand what is his level of knowledge. और नॉलेज अपने आप को धूप में खपाने से आती है, अपने आप को बारिश में भीगने से आती है. हम अगर बच्चे को सिखा, अरे बाहर पानी हो रहा है, अरे बारिश हो रही है, तू बाहर मत जा, तेरे को सर्दी आ जाएगी. अगर सर्दी आ जाएगी तो फार्मिंग कौन करेगा? क्या पढ़ा रहे हैं हम? किसको पढ़ा रहे हैं हम किस कॉन्सेप्ट को लेके इस कंट्री में आ गए हैं? हम क्या गलत पढ़ा रहे हैं, क्या सही पढ़ा रहे हैं, इसके आर्गुमेंट में मैं नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं, ये सुनना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं, क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम उनको ये पढ़ा रहे हैं कि तुम डरपोक बनाओ. छिपकली से डरते हैं बच्चे, कॉकरोच से डरते हैं बच्चे. इतनी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दिया जो शरीर मरने वाला है. इस शरीर का कोई वैल्यू ही नहीं है. इसका वैल्यू तब है जब इसके अंदर की जो ताकत है वो डिलीवरी कर सके. और स्कूल और एजुकेशन और लीडरशिप का काम है उसको उभार के बाहर लाया जाए, और कुछ नहीं है. किस बड़े स्कूल में पढ़े थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी? कौन से बड़े एयर कंडीशन रूम में बैठे थे, देश के राष्ट्रपिता बन गए? लाल बहादुर शास्त्री जी किस कॉन्सेप्ट से पढ़ के आए? कम से कम उनको पास तो चवन्नी नहीं थी, नदी पार करके जाना पड़ता था आगरे में उनको कॉलेज में पढ़ने के लिए. अगर चवन्नी होती तो वो नाव में चले जाते. ही वुड हैव गॉन बाय बोट. बोट के पैसे नहीं थे 4 आने उनके पास.
और यहां तक भीग के जाते थे। इसलिए कॉलेज के वक्त के 2 घंटे पहले निकलते थे घर से, ताकि भीगे हुए कपड़े नदी के उस पार जाने के बाद वो सूख जाए और फिर सूखे कपड़े से वो कॉलेज में जाए। और उसी तरह शाम को फिर आते थे। 2 घंटे तक उनको परेशानी होती थी, फिर जाके वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को गौरव दिया है, उसने कोई करप्शन नहीं किया है। उनको किस एयर कंडीशन रूम में पढ़ाया गया था? विच एयर कंडीशन रूम ही स्टडीड? आई वांटेड टू नो। हरीश सर जी, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं, बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। एक जगह आपके उस स्कूल में उन गरीब बच्चों के लिए रखे जिसमें हम अब्दुल कलाम को खोज रहे हैं। कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। बनेगा, क्योंकि वो एयर कंडीशन रूम में गया ही नहीं था। मैं कोई मोदी का फैन नहीं हूं। मैं खड़े होकर टिटोरा नहीं पीट रहा हूं कि मोदी जी ग्रेट है। मैं शास्त्री जी का भी फैन नहीं हूं, और ना ही मैं किसी और का फैन हूं। मैं उस टीचर का फैन हूं जिसने इन लोगों को बनाया है, और वो टीचर आप हैं, हम सब हैं। ये घर से शुरू होती है और मैयत तक जाती है ये। इसलिए कभी गालिब ने कहा था कि अरे भैया, ये जो मर गया है ना, इसको देख के तू इतने परेशान क्यों हो रहा है? और कई आपको उर्दू आता होगा, और नहीं भी आता हो तो चलिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। तो गालिब कहते थे उसको देख के, अरे यार, इस शरीर के लिए तू इतना टेंशन क्यों करता है? देख क्या मैं बता रहा हूं, सुन जरा इस बात को। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे कि दाग लगने ना पाए कफन को, क्योंकि आज ही इसने बदले हैं कपड़े नए, आज ही ये नहाए हुए हैं। His life's journey started when he went to the grave, because till now what he did, how he did, was the matter of debate. Today will be there tomorrow. अगर उसने अच्छा किया तो याद रहेंगे, बुरा किया तो भूल जाएंगे। इसलिए this classrooms which we created has to have a great change, where teachers have to get air conditioned themselves. Not the buildings, not the infrastructures, because I have been visiting to the best of the best institute, India and abroad, and every time I spoke, I only felt one thing, that I am doing only self-service, self-glorification. I am being groomed as a hero for others, which I am not. A leader is the one. उसकी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी प्रोवर्ब में। A leader is the one. उसकी कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनिएगा। जो अपना सोचता है उसको मैं दुर्योधन से कंपेयर करता हूं। जो अपना सोचता है वो दुर्योधन है, क्योंकि वो स्वार्थी है। तो यहां दुर्योधन जो है स्वार्थ को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपनों का सोचता है, रिश्तेदारों का, भाई बहनों का, वो युधिष्ठिर है, धर्मराज। और जो सबका सोचता है वो कृष्ण है। सबका जो सोच सकता है वो कृष्ण कौन है? वो कृष्ण हर टीचर में होनी चाहिए, क्योंकि खुदा इंसान को बना के इस धरती पे इसलिए भेजा है कि उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि भैया तेरे जरूरत की सारी चीजें मैं दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड। आपको जीने के लिए हवा चाहिए, सांस लेना है ना, तो मैं दे रहा हूं। आपको खाने के लिए जो चाहिए वो मैं जमीन में उपजाऊ करके आपको दे रहा हूं। उसके सारे सीड्स मैंने बनाए चुके हैं, आप उसको यूटिलाइज करो। आपको जो भी अपने आप को साफ रखना चाहिए तो उसके लिए मैंने पानी का अरेंजमेंट कर दिया है। और आपको जो बेसिक टेम्परेचर, हीट जनरेशन चाहिए खाना बनाने के लिए, उसकी भी अरेंजमेंट मैंने ही कर दी है। सब तो मैं ही कर दिया। आपको करना क्या है? तब तक जीना है जब तक सांस चलती है, और जब वो बंद हो गई तो आप चले गए यहां से। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे दिया गया सिर्फ 15 मिनट है, तो मैं सिर्फ 15 मिनट पे खत्म कर सकता हूं। उठिए मत उषा जी, फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कल हम हो ना हो। है छोटी सी बात है जो दिल में है, मुझे तो कहना ही कहना है वो बात। हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हम K-12 की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। मैं तो इंडियन एजुकेशन की लीडरशिप की बात कर रहा हूं। आने वाले दिन में हमारे बच्चों को हम क्या समझाएं? अगर हम अभी नहीं समझा रहे हैं तो समझाएं उन्हें। हम ये अमीरी गरीब का फर्क क्लासरूम में खत्म करें। हम वो 80% मार्क्स से और 60% मार्क्स का ये खत्म करें। मेरे बगल जो क्लास में बैठता था
उसकी मार्क्स आती थी 40, मेरी आती थी उस वक्त 80। और जब तक मैं क्लास 10th में पहुंचा, उसके बाद में 11 और 12, बहुत कुछ चेंज हो गया। जिसको 40 आती थी उसको 100 आने लगी, और जिसको 60 आती थी वह 40 पे चला गया, 80 से 60 और 60 से 40 पे। और वो इंसान नासा के सेकंड इन कमांड एक टॉप क्लास साइंटिस्ट बना, उसका नाम है राधाकृष्णन। हम दोनों को बगल में इसलिए हमारे टीचर ने बैठाया था कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मेरी लैंग्वेज अच्छी थी, और उसकी मैथमेटिक्स अच्छी थी। तो उसने कहा ये दोनों का समन्वय हो, इन दोनों को मिलाया जाए ताकि एक अद्भुत इंसान बने। और वो बन के दिखाया उसने। और जब भी मैं उसको देखता हूं सीना फूल जाता है। हमारे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट एकेडमिक नहीं होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए। तो इसका जो आखिरी वक्तव्य मैं आपको दे रहा हूं, हमारे जितने भी ग्रेट लोग बने इस कंट्री में, उसमें कुछ पोएट ऐसे थे जो ऐसी छाप छोड़ गए इस देश में जिसको हम कंटिन्यूली रन करना चाहते हैं। ये एक छोटी पंक्तियां हैं, ये पूरा मैं सब 2 मिनट में क्लोज करूंगा। अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी। अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। अर्थ इसका खोल पंथी पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हम टीचर्स हैं, हम सब मिलके इस देश को बनाना है। हमें एक ऐसा रास्ता बना के देना है अपने आने वाले बच्चों का भविष्य में, ताकि हर एक कोयम्पू की तरह सोचे, ओ नन्ना चेतना आगुनी अनिकेतना। आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, और इसके बारे में मैं डीप में नहीं जाऊंगा। प्लीज राइज टू द लेवल ऑफ लीडरशिप। It's out of air conditioned halls. India lives beyond air conditioned hall. India lives, as per the father of the nation statement, India lives in rural India. Take the education to the doorstep of the people of this country. Let this country rise like a phoenix and ultimately get back. I really stand with Mr. Sharif and request all the academicians here. The very idea is let's work together to bring back the lost glory of this country. हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। जय हिंद। Thank you very much. Thank you so much, sir, for that inspiring words. Can you please be on stage? Now I request Ms. Kadambari Mattu to come up on stage and honor our guest of honor. Ladies and gentlemen, can we give a huge round of applause